मैं कहा अपना फोन तो मैं म्यूट करूँ, स्टूडेंट्स को कह देते हैं और अक्सर टीचर खुद छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Well, we started talking about the endocrine system yesterday and talked about some general rules and principles for sample collection and data analysis. And we also talked about we started with the location of pituitary, that where it is located. The only reason to know it, because if there is an enlargement of pituitary, so what can happen? It can erode the salatal shape, and finally it can put pressure on the optic chiasma, can lead to visual abnormalities, can lead to many other things, for example, hydrocephalus. And sometimes it can also lead to other problems related to cranial nerve palsy. So hydrocephalus, cranial palsy, but the bilateral hemitemporal this visual abnormality is usually very common. And if there is a pituitary tumor, which is an enlarged tumor, you will find that there are visual abnormalities. Patient may come to you with bitemporal hemianopia. So they can report to you in the clinics, in the wards, with that clinical symptom only. Sometimes they come with headache or hydrocephalus because of blockade of the cerebrospinal fluid, which does not drain into the spinal cord. So location is very important because of that. If there are two ways, one is the structural abnormalities, the other is functional. Structural, I told you, it could be destruction or it could be enlargement. तो simple hypertrophy और enlargement भी हो सकती है और destruction या injury भी हो सकती है. Hemorrhage बीच में हो जाए तो enlarge हो सकता है. But this is the whole, is the physiology, the hormones which are produced. If I just give a small repetition के venous plexus के जरिए anterior pituitary से जो hormone release होते हैं वो end organs को जो या direct tissues को sometimes like growth hormone on the bones and the muscles, और इसी तरह जो memory glands के ऊपर they can have over here prolactin. So growth hormone and prolactin जो pituitary से आता है वो directly acts on the tissues. Whereas वो hormones जो anterior pituitary से आते हैं like TSH, ये this is FSH LH which acts on the gonads, or OB is a testosterone to produce FSH और LH जो हैं वो इनसे जो other hormones produce होते हैं estrogen progesterone वगैरह. So ये they act on the organ, they act on the direct tissues, and this is renal and this is thyroid. So TSH, ACTH, FSH, LH, ये gonadotrophs cells जो secrete करते हैं वो, this is corticotrophs, और ये हैं thyrotrophs. तो बाकी ये आमतौर पे मेमोट्रॉफ्स और लैक्टोट्रॉफ्स इन्हें कहते हैं, स्मेटोट्रॉफ्स कहते हैं जो ग्रोथ हार्मोन रिलीव करते हैं. ये नाम सिर्फ फंक्शनल एक्टिविटी की वजह से, अदरवाइज ये नहीं कि आप उन्हें क्लियरली आइसोलेट कर सकें किसी भी स्टेनिंग रिएक्शन से या किसी भी टेक्निकल मेथडोलॉजी से दैट ये कौन से हार्मोन्स हैं. That is only the functional description you can say of the hormones. Posterior pituitary से antidiuretic hormone oxytocin, ये this is antidiuretic hormone ये है, और this is oxytocin जो कि uterine contraction करता है और lactation पे भी इसका it leads to increase in lactation. एक और है एंटी नाइट्रियूरेटिक हार्मोन जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है. सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनफैक्ट, और इसकी ट्रांसफर फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरीज टू एक्सॉन्स. सो ये न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशन है, axonal transmission from hypothalamus to pituitary, and then posterior lobe of pituitary will secrete this antidiuretic hormone oxytocin or anti-natriuretic hormone.
ये हमने कल जहाँ पे थे बेसिकली वो मैंने थोड़ा सा रिपीट ऐसे ही कर दिया, जस्ट टू पुट अ बटन ऑन द रिफ्रेश नॉलेज। और कुछ आपका उससे ये भी फायदा होता है कि 2-4 मिनट में बच्चे थोड़े से दे नीड टाइम टू बी एक्टिवेटेड, टू बी मोबिलाइज्ड, टू लिसन टू। बहरहाल अब हम आते हैं जी पिट्यूटरी के उस पे जो कॉजेज हैं पिट्यूटरी के, वो कल नहीं बताए थे। साइज की हम टाइम शॉर्टेज की वजह से मैंने कहा था, दो इंपॉर्टेंट डिजीजेस व्हिच आर रिलेटेड टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ hormones from pituitary. So the hormones which are secreted from pituitary, when they are secreted in excess amount, ये जो रेज्ड हैंड करते हैं तो उसे भी देखा जा सकता है, पूछ लें उससे कि मैं आमतौर पे इन द लैब। अच्छा, इस पे इसे क्या करूँ, क्लिक करूँ? नहीं सर, हाँ ये रेज हैंड नोटिफिकेशन। अच्छा वो था उसको सिर्फ वो करा। अच्छा खैर, I was talking that when there is an increased secretion of pituitary, this ये functional abnormality है। जहाँ पे भी functional abnormality होगी, जैसे थायराइड हो तो hyperthyroidism कहते हैं, और कम हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे तो हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे हाइपर पिट्यूटरीज्म की हम बात कर रहे हैं, व्हेन देयर इज एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी। तो अब बात हार्मोन्स तो बहुत से सीक्रेट होते हैं, लेकिन इन यूजुअल इट डिपेंड्स कि विच टाइप ऑफ, अभी मैंने आपसे बताया था कल भी कि एक तो फंक्शनल नाम है जैसे सोमैटोट्रोफ्स, लैक्टोट्रोफ्स, मेमोट्रोफ्स, कॉर्टिकोट्रोफ्स, थायरोट्रोफ्स, और एक स्टेनिंग बेस्ड नेम्स होते हैं, एसिडोफिलिक स्टेनिंग अगर वो लें तो यू कॉल देम एसिडोफिलिक, और वो आप लेबोरेटरी में यू कैन identify or discriminate that whether the tumor is because of acidophilic cells or basophilic cells or chromophores. लेकिन एक्सक्लूसिवली एक बात और याद रखें, हाइपर फंक्शनिंग जब पिट्यूटरी का होता है वो आइसोलेटेड आमतौर पे डिजीज, आमतौर पे मोस्ट ऑफ द टाइम द डिजीज प्रेजेंटेड इन द वार्ड्स और क्लिनिक्स इज एन आइसोलेटेड एक्सेसिव सिक्रेशन। लेकिन हाइपो जो है पिट्यूटरिज्म यूजुअली, फॉर एग्जांपल देखिए ये इसमें कोई देयर इज नो नथिंग लाइक दैट कि कोई ड्रामेटिक बात नहीं है। नेचुरली हाइपो तब होगा व्हेन देयर विल बी डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन कब होती है? व्हेन देयर इज हेड इंजरी और इन्फेक्शन और कोई ऑटो इम्यून या कोई भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से हाइपो फंक्शनिंग होगी, तो वो दैट विल इन्वॉल्व द होल ग्लैंड। जब सारे ग्लैंड को करेगा तो तकरीबन सारे हार्मोन्स उनकी सीक्रेशन कम हो जाती है। एंड रिमेंबर, इफ यू फाइंड द डेफिशिएंसी ऑफ वन हार्मोन, you should try to find the deficiency of other hormones as well, क्योंकि मरीज आमतौर पे हाइपोपिट्यूटरिज्म का मरीज पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में प्रेजेंट करता है। इट्स वेरी रेयर के सिंगल आइसोलेटेड डेफिशिएंसी भी हो सकती है, लाइक ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी, डवार्फिज्म, लेकिन usually pan hypopituitarism is more common presentation. But if you talk hyperpituitarism, तो हाइपर फंक्शनिंग जो है वो आइसोलेटेड डेफिशिएंसी ज्यादातर प्रेजेंट करते हैं। अब आइसोलेटेड डेफिशिएंसी से मुराद ये है कि जितने हार्मोन्स अभी हमने बात की है कि पिट्यूटरी आपको रिलीज करता है, तो इसमें ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस को जो डिजीज हैं वो जाइगेंटिज्म कहते हैं या एक्रोमेगाली। इसके कॉजेज आमतौर पे ट्यूमर्स ही होते हैं, एंड दैट मे बी एन एडिनोमा और इट मे बी कार्सिनोमा, so या hyperplasia. So hyperplasia, pituitary adenomas, pituitary carcinomas, so these tumors, whether benign or malignant or simple hyperplasia, both they reflect as hyperpituitaries. और we are talking about only growth hormone. तो growth hormone में ये causes हैं। नंबर 2 cause जो है वो genetic mutation है, और उसमें दो तरह की म्यूटेशन है जीन्स की, which is GNAs, एक which acts through cyclical AMP and leading to signals जो pathways improve हो जाते हैं जिससे excretion of hormones is increased. So that genetic problem or carcinomatous or adenomatous or hyperplastic
These are the different causes of this disease. Or clinical presentation we talked yesterday. Diagnosis we also talked about this yesterday. That it is the assessment of level of growth hormone, और ये clinical में repeat नहीं कर रहा. और X-ray भी आप देख सकते हैं. X-ray finding of skull. There is a thickening of calcarein in acromegaly. ये acromegaly और gigantism में जो फर्क है वो एपिफिजियल यूनियन जो है, बोनी यूनियन जिसे आप कहते हैं, लॉन्ग बोन्स की यूनियन होने के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस होगी तो पेशेंट विल कम टू यू एज एक्रोमेगैलिक. लेकिन अगर यंग एज बच्चे में ग्रोथ हार्मोन की हो तो वो हाइट गेन वर्टिकली करता है. बट वंस द लॉन्ग बोन्स हैव जॉइंड या एपिफिजियल यूनियन हो चुकी हो तो उसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो या ट्यूमर की वजह से, तो व्हाट कैन हैपन इज then the patient presents with acromegaly. और इसमें there is no rocket science in that how to remember कि ये सीधी सी बात है. यहाँ से डायग्राम अगर आपको याद हो तो हाइट बढ़ जाती है और अर्ली एज में होगा और हाइपोगोनेडिज्म होगा. ये तस्वीर अगर याद रखें तो लोकल जाइगेंटिज्म भी हो सकता है. एक्रोमेगैलिक्स में एक्सपेंशन चूंकि हॉरिजॉन्टल होती है, सो जो इंक्रीज इन द साइज ऑफ हैंड्स, फेशियल जो कोर्स फेशियल फीचर्स, सॉफ्ट टिश्यू एनलार्जमेंट ऑफ जॉ, तो ये आमतौर पे. Another thing is when you talk about the diagnosis, I told you yesterday as well कि हाइपर पिट्यूटिज्म में डायनामिक टेस्ट वो होते हैं जिसमें हाइपर को सप्रेस करना. हाइपो में डायनामिक टेस्ट वो होता है जिसमें ग्लैंड को स्टिमुलेट करना. तो इसमें ग्रोथ हार्मोन जो है दैट हैज गॉट अ डायरेक्ट, जैसे जैसे ग्लाइसेमिक लेवल या ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इंक्रीज करता है, ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. डायबिटिक होना 25% ये और बात है. दैट मींस जाइगेंट्स एंड द एक्रोमेगैलिक्स, इनमें टेंडेंसी होती है दैट एवरी फोर्थ पेशेंट can develop, has a risk of developing diabetes mellitus, which we talked in previous session, early session. लेकिन ये जो डायग्नोस्टिक बात मैं कर रहा हूँ ये है कि अगर आप ग्लाइसेमिक लेवल बढ़ाते जाएंगे, हाउ विल यू इंक्रीज द ग्लाइसेमिक लेवल? तो सिंपली जस्ट आप ग्लूकोज just add glucose and dextrose in water and ask the patient to drink. खुद ब खुद ग्लाइसेमिक लेवल बढ़ जाएगा. तो ग्लूकोज लेवल जब बढ़ेगा, ग्रोथ हार्मोन आप ऐसे करते हैं. तो ग्रोथ हार्मोन पहले करें और उसके बाद उसे ड्रिंक्स दें, मतलब डेक्सट्रोज की पानी में मिला के ग्लूकोज, और अगर अवेलेबल ग्लूकोज नहीं है चीनी मिला दें, बट आस्क द पेशेंट टू ड्रिंक इट. उससे ग्लाइसेमिक लेवल इंक्रीज हो जाएगा और ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. सेकेंडली यू टेक द सेकेंड सैंपल वेदर देयर इज एनी. तो अगर तो वो डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो पिट्यूटरी तो ठीक काम कर रहा है, लेवल समथिंग हाइपोथैलेमस वगैरह की वजह से ना, ऊपर लेवल जो आपको शुरू में पहले दिन मैंने I showed you the gram that from hypothalamus and pituitary and other organs with that. तो वो लेवल ऐसे करना बहुत जरूरी है इन द डायग्नोसिस कि कहाँ पे आपको फर्दर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत है और पेशेंट को मैनेज कैसे. सो ये जो कॉजेज हैं एडिनोमास, हाइपरप्लेजिया, इसके अलावा अच्छा एक और चीज है एक्टोपिक सीक्रेशन, कार्सिनोमा या कार्सिनाइड ट्यूमर्स एंड कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, ओट सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, वहां से भी ग्रोथ हार्मोन से मिलता जुलता मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का हार्मोन्स लाइक सब्सटेंस इज सीक्रेटेड जो पॉलीपेप्टाइड होता है, which also have got the actions like that of growth hormones. So ectopic भी आप एक कह सकते हैं. ectopic उस लफ्ज को कहते हैं when the secretion is not coming from pituitary, it is from some tumor or somewhere else, the proper side से. So remember ectopic pregnancy, ectopic जहाँ भी लफ्ज आएगा, for example if pregnancy is not in the uterus, it is in the tubes, fallopian tubes or elsewhere, so उसे आप ectopic pregnancy कह देते हैं. So ectopic the word is used when the cause is not at the proper place but it is somewhere else. So if certain carcinoid tumors or oat cell carcinoma of lung, there is a polypeptide secret करता है which mimics like or which functions like that of growth hormone. तो
उसमें भी आपको ये फीचर्स थोड़े से हो सकते, बट मे नॉट बी दैट टॉल एंड मे नॉट बी दैट वेरी क्लियर फीचर्स। तो डायग्नोसिस हमने बात कर ली कि ग्रोथ हार्मोन और ग्लूकोज पिलाने के बाद, और रेडियोलॉजिकली आप स्कल का एक्सरे लेके आप इसके डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये स्लाइड आ गया, अच्छा ठीक है। तो अच्छा, बहरहाल अब इफ वी टॉक अबाउट हाइपर सिक्रेशन, एज आई टोल्ड यू, इज मोर कॉमनली बिकॉज ऑफ ट्यूमर्स। तो अभी टाइम अभी तो है, तो जो ट्यूमर्स की जो हैं, अब आप ये पिट्यूटरी एडिनोमास आप हैं, मैंने कहा था इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ एडिनोमास, बट मे बी हाइपरप्लेजिया, और वेरी रेयरली द ट्यूमर्स आर कार्सिनोमेटस। तो ज्यादातर ट्यूमर्स दे आर एडिनोमेटस, which based on hormone produced, you can classify adenomas on the basis of staining reaction, on the basis of their size, and on the basis of staining reaction. Based on hormone produced, for example, prolactin cell adenoma, so, or lactotroph adenomas, usually detected in females of reproductive ages. ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोफिक एडिनोमास भी होता है कभी कभी, तो उसे ये आमतौर पे जाइगेंटिज्म या एक्रोमेगैलिक्स, कॉर्टिकोट्रोफिक एडिनोमास। अब ये जो है वो कॉर्टिकोट्रोफ्स जो है, ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, इट इज नॉट स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो फंक्शन जब देखते हैं कि एसीटीएच बढ़ गया है और एसीटीएच ने स्टिमुलेट किया है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और कॉर्टिसोल लेवल या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ गए हैं, तो सो सब्जेक्ट टू दैट थायरोट्रोफ एडिनोमा, नेचुरली टीएसएच ज्यादा सीक्रेट होगा, वो स्टिमुलेट करेगा, थायराइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। सो सेकेंडरी हाइपर, इसे सेकेंडरी इसलिए कहेंगे, प्राइमरी उसे कहेंगे व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, थायरोट्रोफिक एडिनोमा की वजह से, टीएसएच की वजह से, दैट विल स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर थायरोक्सिन और T3 ट्राइआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन। तो वो यू कॉल, if the lesion or problem or disease or disorder is in the thyroid gland itself, you call primary. And when it is in the control mechanism that is above that, for example pituitary or hypothalamus, you call it secondary hyperthyroidism. तो हाइपर हो या हाइपो हो, अगर वो टारगेट एंड टारगेट ग्लैंड की वजह से होगा उसे हम प्राइमरी कहेंगे, और अगर कंट्रोल मैकेनिज्म की वजह से होगा तो उसे हम सेकेंडरी। सो इसमें चूंकि हाइपरथायराइडिज्म अगर टीएसएच की थायरोट्रोफ एडिनोमा हो और व्हिच इज प्रोड्यूसिंग मोर टीएसएच एंड लीडिंग टू हाइपरथायराइडिज्म, दैट टाइप ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। अदरवाइज जो थायराइड ग्लैंड की अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से T3 T4 ज्यादा बढ़ रहा हो और वो नेगेटिव फीडबैक से टीएसएच कम उसमें होगा, यहाँ तो ज्यादा होगा उसमें कम होगा। So agar if the T3 T4 are raised and TSH is low, so you can say there is a paradoxical relationship, you call it the disease is primary. But if all TSH be raised hai or T3 T4 be raised hai, so you can call this hyperthyroidism is because of pituitary. So आपको pituitary को scan करना पड़ेगा, CT scan वगैरह, otherwise आपको thyroid का करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अल्ट्रासोनोग्राफी या फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी और बायोप्सी और समथिंग लाइक दैट। सो इसलिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिपेंड करती है इन चीजों पे। इसी तरह एसीटीएच जो कॉर्टिकोट्रोफ एडिनोमास हैं, तो वो दे स्टिमुलेट कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो जो कॉर्टिकल हार्मोन्स बढ़ेंगे एसीटीएच की वजह से, naturally that will be called as secondary hypercortisolism। तो ये प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन मैंने आपको पहले बताया था, ये डायरेक्टली दे अफेक्ट द टिश्यूज, ये जो है एंड ऑर्गन्स को। तो मिक्स्ड ग्रोथ भी हो सकते हैं। सो बेस्ड, एक तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल है, और दूसरी क्लासिफिकेशन विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द पैथोलॉजिस्ट्स, बिकॉज यहाँ पे फंक्शंस में तो क्लिनिशियंस का रोल है, दे हैव टू थिंक अबाउट दिस के कौन सा हार्मोन बढ़ा हुआ है और उसके साथ हमने कौन सा दूसरा साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ हार्मोन करवाना है, ताकि हम फर्दर स्कैनिंग करने के लिए क्या करें पेशेंट का, हम हाउ टू फाइंड इट आउट वेयर इज द लिंक। But pathologists, they are more interested about, or this, the classification for histopathologists is more on the size as well as on the staining reaction. If the cells, they take up acidophilic or acid stain or basic stain, or they do not take any stain, you call usually acidophilic or basophilic adenomas, chromophilic adenomas.
Microadenomas, when the size is less than 1 centimeter. If the size is more than 1 centimeter, you call it macroadenomas. Sometimes you could give the name silent or null cell adenomas. उसमें ये होता है कि no hormone is produced. लेकिन वो मैक्रो एडिनोमा अगर हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो आप उसे मैक्रो एडिनोमा भी कह सकते हैं और उसे कोई ऐसा नाम भी दे सकते हैं जो जो हार्मोन वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है. बट इफ द मैक्रो एडिनोमा इज देयर बट दैट इज सच अ लार्ज साइज एडिनोमा कि वो आपके जो हेडेक और जो मैंने आपको फीचर्स बताए हैं ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर्स हाइड्रोसेफलस हेडेक और बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया विजुअल एब्नॉर्मेलिटीज वो उससे पेशेंट प्रेजेंट जरूर करता है बट देयर इज नो हार्मोनल एब्नॉर्मेलिटी. In that particular condition, when the hormone production is nil, you call null cell adenoma or silent adenoma, but the patient has got the obstructive problems related because it is macroadenoma, large size adenoma. तो वो ये तो हिस्टोलॉजिकली ग्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर आप इसे क्लासिफिकेशन करते हैं माइक्रो एडिनोमास. माइक्रो एडिनोमास आमतौर पे प्रोलैक्टिनोमास होते हैं व्हिच सीक्रेट्स मोर प्रोलैक्टिन. अच्छा उसके बाद अगर हिस्टोपैथोलॉजिस्ट स्टेन करता है तो उसकी बेस पे ये क्लासिफाई कर सकते हैं. हाँ ये भी आप थिंग इज आमतौर पे बेसोफिलिक एडिनोमास दे आर एसीटीएच सीक्रेटिंग एडिनोमास. एसिडोफिलिक एडिनोमास दे सीक्रेट आइदर ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन. और क्रोमोफोब एडिनोमास भी आमतौर पर प्रोलैक्टिन सीक्रेटिंग हार्मोन्स. याद रखें इफ देयर इज अ पेशेंट विद हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, ये हाइपरप्रोलैक्टिनोमा गलत लिखा है, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया means increased concentration of level of prolactin. अगर आप किसी फीमेल का किसी बच्चे का या अनमैरिड हो या मैरिड का प्रोलैक्टिन लेवल इनफैक्ट यूजुअली बिफोर मैरिज यंग गर्ल्स में अगर करवाएं एंड द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इज हाई तो ये ना समझ लीजिए कि आप if the level is more than 200 micrograms per deciliter, आमतौर पे तो ये बड़ा थोड़ा होता है. इट्स हार्डली 64 और 50 और 70 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर तक इट्स नॉर्मल रेंज. बट इमेजिन कि 70 से 200 तक भी अगर हो तो आपसे यू डोंट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद पिट्यूटरी एब्नॉर्मैलिटीज. आप देयर मे बी समथिंग रॉन्ग विद द ओवरीज. पॉलीसिस्टिक ओवरी में जैसे बढ़ जाता है और आप उधर ज्यादा पहले सोचते हैं and you but if there is a rise is more than 200 so then you might think of that there may be adenoma in the pituitary gland. Otherwise 70 से लेकर 200 के दरमियान अगर हो तो it may be adenomatous or pituitary adenomas or it may be problem with the ovaries जो मैंने अभी जैसे बताया पॉलीसिस्टिक ओवरी में आमतौर पर प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है. लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आप इसे पेशेंट को रेफर करें टू द गायनेकोलॉजिस्ट और इसलिए कि जो रेस लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इन द सीरम दे यूजुअली लीड टू इनफर्टिलिटी. द इनफर्टिलिटी विल बी अ प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज. सो बेटर इट इज कि वो अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी शुड बी ट्रीटेड एंड द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन शुड बी ब्रॉट टू डाउन. आप ये याद रखने के लिए आप याद रखें इस्लाम कहता है कि आप यू हैव टू फीड योर बेबीज फॉर एटलीस्ट 2 years. So what is prolactin? It's coming from the mammary gland. तो वो जो अभी मैंने जो बात की थी कि प्रोलैक्टिन अगर ज्यादा होगा तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं. So that is also you can say family planning. What Islam says, if you feed your babies for 2 years or more than 2 years, not more than 3 years, तो उसमें during early phase of lactating mothers they less commonly become pregnant. Bottle fed babies में mothers they become early pregnant. तो ये याद रखें. तो इससे hyperprolactinemia is one cause of infertility. So आप जब मैंने ये कहा है कि ये is one cause of infertility इसका मतलब ये भी है कि lactating mothers जो है ना उनमें there is lesser chance of having pregnancy. So this is one type of you can say general characters based on pituitary. I told you that histopathologists or pathologists they are more concerned as far as the staining reaction is concerned. Functional behavior or change of functional disease behavior or output of the disease is more concern of medical
personnel or medical specialist or professor of medicine, you can say. But when you talk of pathology, you talk of staining reactions or cross examination. Usually the adenomas, they are soft, they are well circumscribed, they are small or they may be large. They, if they may be having hemorrhage or necrosis, if there is more hemorrhage, it is enlarged. If there is more necrosis and fibrosis, तो shrunken होगा. But erosion may be there or there may be a pressure on optic chiasma. तो ये एक general features है. लेकिन lactotroph adenomas ये chromophobe staining reaction है, इस तरह का होता है. They are also soft and monotonous. आप देखेंगे pleomorphic uniform polygonal cells which are arranged in sheets or cords. और connective tissue इसमें बहुत थोड़ा होता है. Pleomorphism जरूर होगा. Cytoplasm granular होते हैं. क्यों granular होते हैं? Because their granules are responsible to secrete hormones. So याद रखें cytoplasm are granular. ये आप अगर इस थोड़ी सी पिक्चर को ज़हन में रख लें कभी, तो इसमें you will find that the cells are uniform and or small size uniform polygonal cells which are arranged in groups or in sheets or in cords, कुछ भी कह लें. But the cytoplasm is granular और nuclei जो हैं उनमें they show pleomorphism और the behavior of atypical. लेकिन क्रोमोफोब एडिनोमास जो मैंने अभी पहले भी कहा था आमतौर पर प्रोलैक्टिन सीक्रेटिंग होते हैं. डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, जहाँ पे हेमरेज होगी वहाँ कैल्शियम डेपोजिशन जरूर होगी. एंड दैट सॉर्ट ऑफ कैल्सिफिकेशन यू नो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ योर थर्ड ईयर कि कैल्सिफिकेशन दो तरह की होती है, एक डिस्ट्रोफिक, एक मेटास्टैटिक. मेटास्टैटिक वो होती है जब हाइपर कैल्सीमिया, जब लेवल ऑफ कैल्शियम ज्यादा हो उसमें कैल्शियम कहीं जमना शुरू हो जाए जाके मेटास्टेसिस. मेटास्टैटिक का लफ्ज ये है कि एक जगह से कहीं से और जगह जाके. डिस्ट्रोफिक का मतलब ये है कि जब हेमरेज होगी उसमें फाइब्रोसिस होगी, डिस्ट्रोफी होगी और डिस्ट्रोफी होने से वहाँ कैल्शियम डेपोजिशन होने से कैल्सिफिकेशन. सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन. यू तो आप जब कट सेक्शन लें तो यू मे फाइंड सम डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन और फीलिंग ऑफ ग्लिटरिंग फीलिंग जिसे कहते हैं. नाइफ क्या आता है ना जब आप स्टोन कहीं रास्ते में आ जाए तो जिस तरह की फील आती है, तो वैसे आ सकती. सो एसिडोफिलिक एडिनोमास आप ये देखें कितना फर्क है इसमें. दे पिंक और रेड स्टेनिंग eosinophilic cells. ये यू कैन फाइंड इट वेरी लार्ज ग्रैनुलेटेड. अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू बहुत कम होता है. आपने पिछले में भी देखा, इसमें भी देखा, इसमें भी देख लें, उससे पिछली स्लाइड में भी देख लें. So it has got a sparse connective tissue or very small amount of connective tissue, more cellularity और ज्यादातर cells they are mononuclears. और ये नहीं है कि उसमें शेप साइज अलबत्ता थोड़ा बहुत इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है. साइटोप्लाज्म इज ग्रैनुलर ऑलमोस्ट ऑलवेज और वो ग्रैन्यूल्स दे सीक्रेट हार्मोन्स. इसलिए ये एसिडोफिलिक कहते हैं इसलिए कि इट टेक्स एसिडिक स्टेन व्हेन स्टेन विद हेमाटोक्सिलिन एंड eosinophilic. ऑन्कोसाइटोमास उसे कहते हैं which are non functional, हम पहले बात कर चुके हैं. कॉर्टिकोट्रोफ एडिनोमास we have already talked. अदर एडिनोमास वो भी ये एक लफ्ज यूज sometimes it is used as plurihormonal adenomas. So adenomas जो एक से ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करे, which is a rare condition. I already told you hypersecretion usually as an isolated deficiency, as an isolated disease of one target. आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये ग्लैंड थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम है या एड्रिनल कॉर्टेक्स का है, लेकिन जब आप साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ कंट्रोलिंग हार्मोन भी करें तो पता चलता है कि वेदर डिजीज इज प्राइमरी और सेकेंडरी. तो आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का करना है एड्रिनल्स देखने के लिए या गोनेड्स देखने के लिए, या थायराइड का करना है, या फाइन नीडल एस्पिरेशन या अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन करनी है. तो वो सारी चीजें आपको उस वक्त ही पता चलेंगी जब आप फंक्शनल क्लिनिकल फीचर्स पे बेस्ड सोचें. उसके बाद यू गो फॉर हार्मोन. अब हार्मोन में अगर प्राइमरी लीजन है तो वो नीचे टारगेट ग्लैंड्स हैं, अगर ऊपर से है पिट्यूटरी से तो वो सेकंड. देन यू गो फॉर सीटी ब्रेन एंड ऑल दैट. बट उससे पहले इजी वो इन्वेस्टिगेशन की तरफ आपको जाना चाहिए. सो दैट वाज अबाउट हाइपरपिट्यूटरिज्म. हाइपोपिट्यूटरिज्म जो है वो एक ऐसी कंडीशन है, मैंने पहले कहा था कि यूजुअली इट प्रेजेंट्स एज पैन हाइपोपिट्यूटिज्म. अब कॉजेस की तरफ अगर जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो कॉजेस होते हैं उसमें हाइपरपिट्यूटरिज्म में आमतौर पे देयर इज एडिनोमा, हाइपोप्लेजिया और कार्सिनोमास और एक्टोपिक ट्यूमर्स और जेनेटिक चेंजेस. लेकिन
When you talk of hypopituitarism, the causes are altogether different. और उनमें आपको हेड इंजरी किसी और वजह से हो, डिस्ट्रक्शन हो, रेडिएशन हो, स्कल पे आप रेडिएट कर रहे हो, ग्रैनुलोमास हो, ग्रैनुलोमास मींस ट्यूबरकुलस और सिफिलिटिक, और infarction. Sheehan syndrome is a word which is used for postpartum hemorrhage. आमतौर पे ड्यूरिंग लेबर, जब चाइल्ड बर्थ में, समटाइम्स इन फीमेल्स आफ्टर लेबर देयर इज अ हेमरेज इन द पिट्यूटरी एंड दैट इज कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज इन द पिट्यूटरी. वो हेमरेज जो है वो इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स और फाइब्रोसिस हो गया और कैल्सिफिकेशन हो गया और फाइनली एनलार्जमेंट तो नहीं होती उसमें आमतौर पे, बट डिस्ट्रक्शन. So that syndrome is called a Sheehan syndrome. So Sheehan syndrome is a postpartum hypopituitarism. यानी कि पैन हाइपोपिट्यूटिज्म आफ्टर लेबर, बच्चा पैदा होने के बाद पोस्टपार्टम हैमरेज होगा पिट्यूटरी में, एंड दैट पोस्टपार्टम हैमरेज in the pituitary leading to panhypopituitarism is called Sheehan syndrome. So single hormone deficiency hypopituitarism में बहुत कम होती है. जैसे कि अभी हमने इसके causes का enumerate जब किया तो मैंने I told you that there is either destruction or injury. अब इंजरी हेड इंजरी भी हो सकती है, ग्रैनुलोमास की वजह से भी हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, हेमरेज की वजह से भी हो सकती है, जैसे अभी वी टॉक्ड अबाउट शीहन सिंड्रोम और पोस्टपार्टम हेमरेज इन द पिट्यूटरी. फिर इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी स्कल पे अगर दे रहे हो तो एट्रोफिड होगा ग्लैंड, तो सिंगल हार्मोन डेफिशिएंसी इज अ वेरी वेरी रेयर presentation. Usually the hypopituitarism presents as PAN. PAN means multiple hormone deficiencies. So इसीलिए मैंने in the start I said to you, if they isolated हो भी सकते हैं, जैसे ये dwarfism, growth hormone deficiency भी की वजह से भी dwarfs जो है ना वो हो सकते हैं. But we will talk about this a little later. But common presentation is panhypopituitarism. अब panhypopituitarism में pituitary gland के भी होंगे, thyroid gland में hypothyroidism के जो जब हम हाइपोथायराइडिज्म पढ़ेंगे तो आप उस वक्त ये क्लिनिकल फीचर्स और फिर उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स के भी, जैसे लो ब्लड शुगर एंड लो कॉर्टिसोल एंड लो ब्लड प्रेशर वगैरह, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और आपको पता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का रोल है. इफ यू टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन में एंडोक्राइन कॉजेज भी आते हैं. There's a question, enumerate the causes of hypertension. Remember, endocrine causes of secondary hypertension भी होते हैं, treatable, और आमतौर पे ऐसा हाइपरटेंशन जो है ना वो प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है उसमें हमेशा दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, बट सेकेंडरी हाइपरटेंशन में वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम. तो इसी तरह आपके इनफर्टिलिटी और ये, हाँ एक चीज बताना मैं भूल गया कि जब आपको हाइपर पिट्यूटिज्म हो तो मेमोरी ग्लैंड्स में देयर इज गैलेक्टोरिया, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन की वजह से. गैलेक्टोरिया मींस एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ मिल्क, लेकिन हाइपो में देयर इज लैक्टेशन फेलियर. हाइपर पिट्यूटिज्म में देयर इज इनफर्टिलिटी, हाइपर पिट्यूटिज्म में फर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं. तो बहरहाल ये सारे ग्लैंड्स जितने भी हैं उनके जो भी क्लिनिकल फीचर्स होंगे वो आपको पैन हाइपोपिट्यूटिज्म में मिल सकते हैं. सो देयर मे बी एन एविडेंस ऑफ मैस, हेमरेज होगा तो समटाइम्स यू मे फाइंड ऑन सीटी स्कैन द मैस, और एन एविडेंस ऑफ एंडोक्राइन डिसफंक्शन. अब सिंगल हार्मोन एंडोक्राइन डिसफंक्शन भी हो सकता है, बट मोर कॉमनली इट इज मोर हार्मोन्स, एक नहीं बल्कि सिंगल हार्मोन से एक से ज्यादा हार्मोन की डेफिशिएंसी आपको नजर आएगी. इफ यू टॉक अबाउट द ड्वार्फिज्म, दैट इज एन आइसोलेटेड ड्यू टू आइसोलेटेड डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन. उसमें यू विल हैव लैक्टेशन फेलियर, हाइपोगोनाडिज्म. अच्छा, यू हैव टू एक्सक्लूड द अदर कॉजेज ऑफ ड्वार्फिज्म फर्स्ट. आप उसे पिट्यूटरी ड्वार्फ्स को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से भी ड्वार्फ्स होते हैं, थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से भी ड्वार्फ्स होते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिसे कहते हैं उसकी वजह से भी, stress can also lead to low height people, but so you exclude the other causes of dwarfs first and then you start thinking about pituitary dwarfs. Otherwise होते आमतौर पे.
सो दिस पिट्यूटरी का जो एक टॉपिक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में अब तक हम बात कर रहे थे, वी टॉक अबाउट पोस्टीरियर पिट्यूटरी. आई टोल्ड यू देयर आर थ्री हार्मोन्स. आई सेड antidiuretic hormone, oxytocin, and antinatriuretic hormone, which control sodium metabolism. We're not talking about oxytocin or the other one. We only talk about adrenal, this antidiuretic hormone. ये excess secretion हो तो उसे कहते हैं inappropriate this syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, or say ectopic ADH by malignant neoplasia like port cell carcinoma of lungs, drugs, infection, trauma of central nervous system. अच्छा, रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर क्यों होगा? सोडियम की वजह से. जब सोडियम की वजह से रिजॉर्प्शन हो, मोर वाटर इज देयर, सो देयर विल बी अ डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया. वाटर इज रिटेन मोर इन कंपैरिजन टू सोडियम. तो जब पानी ज्यादा हो, नमक कम हो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम डिक्रीजेस. तो इसे इस तरह की हाइपोनेट्रीमिया को आप डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया भी कह सकते हैं, व्हिच इज ड्यू टू रिजॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर फ्रॉम द किडनी. Diagnosis is based on raised level of ADH and radiological examination. So, ये ADH excess, which is also called syndrome of inappropriate antidiuretic ADH. Antidiuretic hormone का मतलब ये ADH की abbreviation ही है. So, excess means syndrome of inappropriate anti-ADH secretion. चाहे आप इसे AD-excess का नाम दे दें, ADH excess, या इसे syndrome of ADH secretion कह दें. ये इसकी कॉजेज हैं. और डायग्नोसिस के आपको रेज लेवल ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन. हाइपोथैलेमिक सुप्रासेलुलर ट्यूमर्स भी होते हैं, ग्लायोमास और क्रेनियोफ्रैंजियोमास, जिनमें हाइपर फंक्शनिंग या हाइपो फंक्शनिंग ऑफ आइदर दे प्रेजेंट विद हाइपर और हाइपो. इसका ताल्लुक क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का प्रेशर की वजह से है, तो पेशेंट में प्रेजेंट विद हाइपर सीक्रेशन और हाइपर. अब डायबिटीज इंसिपिडस एक चीज रह गई, और पेशेंट में प्रेजेंट विद कॉम्बिनेशन ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस और हाइपर और हाइपो. ये तीनों की कॉम्बिनेशन में से कोई भी फीचर्स हो सकते हैं. But this is more important, that when there is deficiency of antidiuretic hormone, there is diabetes insipidus. Okay, so this is last we are touching about it, और बाकी अब कल. Antidiuretic hormone की deficiency, as there is a block over here, so what happens is when there is a deficiency, तो इससे क्या होगा? वॉल्यूम डिप्लीशन. वॉल्यूम डिप्लीशन होगी तो रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा. रेनियन एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट होने से एल्डोस्टेरोन और सोडियम. डायरेक्टली भी वॉल्यूम डिप्लीशन होने से सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है. जब सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, वेदर बिकॉज ऑफ एल्डोस्टेरोन और बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम, तो व्हाट हैपेंस इज देयर इज हाइपर पॉजिटिव, का मतलब ये कि हाइपर ऑस्मोलैरिटी. और ये इट स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस, लेकिन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता तो है, बट तो क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या होंगे? जब एंटी डायूरेटिक का मतलब है डायूरेसिस नहीं हो रहे. एंटी मींस इसका मतलब है कि देयर इज जो डायूरेसिस को रोकता था वो हो रहा नहीं हो रहा, तो पॉलीयूरिया होगा. पॉलीयूरिया होने से ही वॉल्यूम डिप्लीशन. मतलब पर पेशेंट लूजेस वाटर. पॉलीयूरिया इसे इंसिपिडस का लैटिन वर्ड है, इसके मायने ही टेस्टलेस है. सो एक डायबिटीज मेलाइटिस है, वो शुगर मीठी शुगर है, मीठा पॉलीयूरिया है. तो ये पॉलीयूरिया टेस्टलेस पॉलीयूरिया, इट इज डाइल्यूशनल पॉलीयूरिया. वाटर इज नॉट बीइंग रिटेन, इट इज लॉस्ट इन द यूरिन. सो दैट पेशेंट प्रेजेंट्स विद पॉलीयूरिया, और पॉलीयूरिया की वजह से वॉल्यूम डिप्लीशन से हीमो कॉन्सेंट्रेशन. तो मकसद ये है कि जब आप पॉलीयूरिया का पेशेंट होगा, अब साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया भी एक होता है. जब आप वाटर लॉस ज्यादा करते हैं, थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होता है, तो अब पानी ज्यादा पीना और पॉलीयूरिया, ये फीचर सिर्फ अकेले डायबिटीज मेलाइटस के नहीं है, बल्कि डायबिटीज इंसिपिडस के भी है. वो अब डायबिटीज इंसिपिडस जो है, एक तो इनएप्रोप्रिएट सिक्रेशन ऑफ एडीएच की वजह से होती है, यानी कि डेफिशिएंसी की वजह से ब्लॉक है. और इसके अलावा नेफ्रोजेनिक भी हो सकती है, जेस्टेशनल भी हो सकती है. ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जेस्टेशनल या नेफ्रोजेनिक, और या पिट्यूटरी की वजह से भी हो सकती है. सो न्यूप्लास्टिक भी हो सकती है. सो दीज आर द 4 कॉजेज ऑफ डायबिटीज और पॉलीयूरिया. पॉलीयूरिया, टेस्टलेस पॉलीयूरिया लीडिंग टू हीमो कॉन्सेंट्रेशन.
ब्लड वाटर वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हीमो कॉन्सेंट्रेशन, और वो हीमो कॉन्सेंट्रेशन से हर वो मॉलिक्यूल्स जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हेमाटोक्रिट बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन बढ़, यूरिया बढ़ जाता है, तो ये चीजें रेज हीमो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो फीचर्स होते हैं वो अदरवाइज बाकी चीजों को वो अफेक्ट नहीं करता. बिगर मॉलिक्यूल्स दे शो अ राइज. So hemo concentration is there. So this was all about pituitary. Tomorrow we will start with adrenal cortex. Thank you very much. Yes, sir.